सो हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग. अपने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो. सो वेलकम बैक वंस अगेन इन केमिस्ट्री मंथन एंड वी आर डूइंग मोल कॉन्सेप्ट. एंड इन मोल कॉन्सेप्ट we have completed 4 lectures, and so far we have done so many things in mole concept which are very essential for understanding of physical chemistry, right? So we have done fundamentals of mole concept, atomic mass, molecular mass, gram atomic mass, molar mass. So currently we are doing molar mass, which is a very important concepts of stoichiometry. We are relating mass, number of moles, molar mass and all. So continuing further, once again in this lecture we are going to solve some advanced level problems on molar mass. So once again we are going to do some practice on molar mass, how to relate mass, molar mass and number of moles of a substance. So let's proceed further. Start करते हैं. So let's start with a problem on molar mass. We have already done that type of problem, but with slight different angle. एक बार और हम उस टाइप के प्रॉब्लम्स को करते हैं. सपोज करो एक क्वेश्चन है कि 5 ग्राम of a hydrated zinc sulfate on heating rendered anhydrous giving 4 gram of solid residue. Determine formula of hydrated salt. Formula of hydrated salt. Atomic mass of zinc is given 65. What is this problem? There is a hydrated zinc sulfate जिसका फॉर्मूला हम ले सकते हैं ZnSO4.XH2O NH2O कुछ भी. जब उसको हीट करेंगे तो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, लिविंग बिहाइंड एनहाइड्रस ZnSO4. हाइड्रेटेड और एनहाइड्रस सॉल्ट का मास दिया गया है और इससे हमें मालूम करना है कि हाइड्रेटेड सॉल्ट के 1 मॉलिक्यूल में कितने वाटर के मॉलिक्यूल हैं, राइट? तो इसके लिए हम फिर से वो फॉर्मूला लिखेंगे कि हाइड्रेटेड सॉल्ट कुछ होगा ZnSO4.XH2O, जिसको हीट किया तो मिला ZnSO4 सॉलिड के फॉर्म में एंड X टाइम्स वाटर वेपर इवेपोरेट हो गया. ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या बता रहा है कि if one mole of hydrated salt is heated, 1 mole, then it will give 1 mole of zinc sulfate and X mole of water. That's very simple. So 1 mole of this will give 1 mole of this and X mole of water.
we can determine mass of 1 mole of zinc sulfate. What it will be? Mass of 1 mole of zinc sulfate will be mass of 1 mole of zinc, which is 65, plus sulfate is 96, 32 plus 64, 96. So it is going to be 6, 5, 11, 1, 9, 1, 10, 6, 16, 161 gram, 1 mole. And x mole of water will weigh how much? 18x gram. 1 mole of water is 18 grams, so x mole of water will be 18x gram. Also, we have a relation that if 5 gram of this salt is heated, we get 4 gram of this. It means 1 gram of this. By applying conservation of mass can neither be created nor be destroyed. That relation is given. Now it's obvious, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि अब करना क्या है. आपको एक मास में रिलेशन दिया गया है कि 4 ग्राम ऑफ दिस देन 1 ग्राम ऑफ दिस, देन कैन बी डिटरमिन कि अगर 161 ग्राम इसका होगा तो इसका कितना होगा. और 160 ग्राम ऑफ जिंक सल्फेट के लिए जो मास आएगा यहाँ पे वाटर का, क्या वो 18x होगा? x सॉल्व हो गया. So just apply the unitary method. So 4 gram of this is associated with 1 gram of water. So 161 gram of this will be associated with 1 upon 4 into 161 gram, and that will be 18x mass of water. तो यहाँ से हम x को सॉल्व कर सकते हैं. So x will be equal to 161 divided by 4 into 18. If we solve it, it will be approximately 2. Approximately 2, right? It is 2.2. So we can round off to 2. So formula will be ZnSO4.2H2O. तो ऑलरेडी हमने इस तरह का एक कैलकुलेशन लेक्चर 4 में भी किया था, तो थोड़ा सा उसको डिफरेंट एंगल से मैंने प्रेजेंट किया ताकि रेपिटेशन हो जाए, एक बार हम समझ में आ जाए. देखो, कंपटीशन, जिस कंपटीशन की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, उस कंपटीशन में वो स्टैंडर्ड तभी आएगा जब हम ढेर सारे प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करेंगे, और प्रॉब्लम्स अच्छे स्टैंडर्ड के होने चाहिए. अभी तो ये बिगनिंग है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है. सो लेट्स प्रोसीड फर्दर. अब आज कुछ और वैरायटी के, जैसा मैंने आपको कहा कि थोड़ा सा एडवांस लेवल का प्रॉब्लम मोलर मास पे हम इसमें करेंगे, और मोलर मास पे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन जेईई में, नीट में आ रखे हैं. तो एग्जैक्टली हम उस प्रॉब्लम को तो नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो मैंने आपको असाइन कर रखा है, वो तो आपको करना है. अगर मैं यही करा दूंगा तब तो आप कहोगे कि सर ने करा ही दिया है तो हम क्या करें. मैंने आपको कहा है कि आपको सेल्फ टेस्ट करना है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आफ्टर कंप्लीटिंग द टॉपिक. तो एग्जैक्टली तो नहीं, बट उस टाइप के क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं आपको. एक प्रॉब्लम लेते हैं. कह रहा है कि अब अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, तो कोरोना वायरस पे एक प्रॉब्लम करते हैं. कह रहा है कोरोना वायरस is uniform cylindrical in shape with
diameter 200 with diameter 200 angstrom and length 5000 angstrom. If density of virus is 1.2 gram per cc, determine molar mass of coronavirus. मोलर मास आप सबको मालूम है क्या होता है. मोलर मास इज मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ एवोगाड्रो नंबर. अगर हम गिवन इंफॉर्मेशन से सिंगल वायरस का मास मालूम कर लें, देन फाइनली उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी द मोलर मास. सिंगल वायरस का मास कैसे मालूम हो सकता है? तो वायरस की ज्योमेट्री दे रखी है कि वायरस सिलेंड्रिकल है और सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना हमें आता है, हमने स्कूल डेज में पढ़ा है. तो लेंथ और डायमीटर को यूज करके हम सिलेंड्रिकल वायरस का वॉल्यूम मालूम कर लेंगे और वॉल्यूम मालूम कर लेंगे तो उसे डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे. वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मास आ जाएगा एंड दैट विल बी मास ऑफ 1 वायरस. और 1 वायरस का मास आ गया तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रो नंबर से, दैट विल बी मोलर मास ऑफ कोरोना वायरस. तो ये हो गया स्ट्रेटजी. देखो कोई भी क्वेश्चन को पहले थोड़ा सा अपने थॉट प्रोसेस में लाओ, प्लानिंग करो कि ये सॉल्व होगा कैसे. बच्चे करते क्या है, क्वेश्चन मिला फटाफट कुछ सॉल्व करने लग जाते हैं और अंत में पता चलता है अरे ये तो सॉल्व ही नहीं करना था. तो स्ट्रेटजी, प्लानिंग क्या है कि ये वायरस सिलिंड्रिकल शेप का है. दिस वायरस इज सिलिंड्रिकल इन शेप with diameter 200 angstrom and length 5000 angstrom. तो वॉल्यूम क्या होगा इस सिलेंडर का? पाई आर स्क्वायर एल. अब देखो डेंसिटी दिया है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो वॉल्यूम भी हमें चाहिए सेंटीमीटर क्यूब में. रेडियस हो जाएगा 100 एंगस्ट्रॉम, डायमीटर का हाफ, और एंगस्ट्रॉम होता है 10 का पावर -10 मीटर. तो 100 इंटू 10 का पावर -10 मीटर, और इसे 100 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेंटीमीटर हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 100 इंटू 100 इंटू 10 का पावर -10 सेंटीमीटर. सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 10 का पावर -6 सेंटीमीटर हो जाएगा. ये तो हो गया रेडियस. इसी तरह से लेंथ क्या हो जाएगा वायरस का? 5000 इंटू 10 का पावर -10 मीटर. 100 से और यहीं पे मल्टीप्लाई कर दो, ये सेंटीमीटर हो जाएगा. सो 3 इंटू 5, 10 का पावर 5 -10, 10 का पावर -5 रह जाएगा. सो 5 इंटू 10 का पावर -5 सेंटीमीटर. नाउ लेंथ and radius is known, so volume of virus will be what? Pi into r square. R is 10 to the power -6 centimeter. Pi r square into L, 5 into 10 raised to the power -5 centimeter. -6 power 2 -12 -5 -17. So it is 5 pi into 10 raised to the power -17
centimeter cube. That is the volume of one virus. Density से मल्टीप्लाई कर देते हैं, that will be the mass of one virus. Mass is volume into density, so volume is 5 pi into 10 raised to the power minus 17 centimeter cube into density 1.2 gram per centimeter cube. ये देखो सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल, 1.2 into 5 6, so it is 6 pi into 10 raised to the power minus 17 gram. So molar mass will be what? Mass of one virus into Avogadro number. Mass of one virus into Avogadro number. तो mass of one virus यहाँ सामने है, 6 इंटू पाई का वैल्यू ले लो 3.14 इंटू 10 raised पावर माइनस 17 इंटू 6.022 इंटू 10 का पावर 23 ग्राम. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो कोएफिशिएंट वाला टर्म हो जाएगा 6.022 इंटू 3.14 into 6, it is 113.45. It is 113.45 into 10 raised to the power 17 and 23 power 6 ग्राम पर मोल. ये हुआ आंसर. डिफिकल्ट था ना? थोड़ा सा सिंपल ही तो है. प्लांट वायरस सिलिंड्रिकल है, यही है मान लो कोरोना वायरस. तो एक वायरस का मास मालूम कर लिया. कैसे? पाई आर स्क्वायर एरिया क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास इंटू एवोगाड्रो नंबर मोलर मास. आगे बढ़ते हैं. तो मोलर मास पे हम इस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं. लेट अस प्रोसीड फर्दर. अब एक प्रॉब्लम लेंगे मोलर मास पे, थोड़ा डिफरेंट टाइप का, जिसमें अब डायरेक्ट मोलर मास इस तरह से तो नहीं लगेगा, थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में लगेगा. उसके लिए एक इंफॉर्मेशन, सिंपल सा इंफॉर्मेशन है, सभी लोग जानते भी होंगे, फिर भी पहले मैं 10 सेकंड में वो इंफॉर्मेशन दे देता हूं. आप सबने सुने होंगे दो टर्म, वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस. सुना होगा. वोलाटाइल सब्सटेंस उसे कहते हैं जो हीट करने पे आसानी से इवेपोरेट कर जाता है. जैसे वैक्स, कैंडल का वैक्स, या सॉलिड आयोडीन, थोड़ा सा हीट कर दो गैस बन जाएगा. कैम्फर, ये सब वोलाटाइल सब्सटेंस होते हैं. तो वोलाटाइल सब्सटेंस ऑन हीटिंग इवेपोरेट. नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस जो काफी हाई टेम्परेचर तक अनअफेक्टेड रहता है, इवेपोरेट नहीं करता है, जिस पे ऑर्डिनरी हीटिंग का कोई असर नहीं होता है. कहीं ना कहीं जाके तो वो भी मेल्ट करेगा, बट नॉर्मल कंडीशन में सिंपल हीटिंग पे उसका कुछ नहीं होता है. इसको लेके मोलर मास पे कुछ क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं. जैसे देखते हैं. क्वेश्चन है 10 ग्राम. देख लो, कईयों को लग रहा होगा कि ये पढ़ा तो रहे ही नहीं, केवल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं.
तभी तो हमारा मोल कॉन्सेप्ट केवल 30 घंटा चलेगा, और बाकी जमाने का मोल कॉन्सेप्ट में रेडॉक्स भी घुसड़ देते हैं, तब भी उनका 3-4 घंटे में खत्म हो जाता है। तो मैंने आपको अभी बहुत थोड़ा सा पढ़ाया है, ढेर सारे प्रॉब्लम कर रहे हैं। जैसे ये कंप्लीट होगा फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इंपेरिकल फार्मूला, फिर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, और इस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन है कि 10 ग्राम ऑफ ए सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट containing some non-volatile inert impurity on heating decomposes completely, leaving behind 6 gram of सॉलिड रेसिड्यू। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है। डिटरमिन परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ सैंपल। क्वेश्चन को पहले समझते हैं। हमारे पास एक कैल्शियम कार्बोनेट का सैंपल है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट है और साथ में कुछ इम्प्यूरिटी है। उस इम्प्यूरिटी की प्रॉपर्टी क्या है? वो नॉन वोलेटाइल है, मतलब उस पे हीट का कोई इफेक्ट नहीं होने जा रहा, यानी कि हीटिंग के बाद भी वो अनअफेक्टेड सॉलिड स्टेट में ही रहेगा। लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज कर गया। अब कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन सिंपल, सब लोग जानते होंगे। कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन को जब हम हीट करते हैं देन इट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में रह गया और CO2 गैस बन के स्केप कर गया। यानी कि अगर हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन को लिखें तो कैल्शियम कार्बोनेट हीट करने पे कैल्शियम ऑक्साइड दिया जो कि सॉलिड इंप्यूरिटी होगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के निकल गया। कैल्शियम कार्बोनेट के अलावा यहां पे इंप्यूरिटी भी है और इनके कंबाइंड मास 10 ग्राम है। कैल्शियम कार्बोनेट और इंप्यूरिटी कंबाइंड 10 ग्राम। हीट किया, ये रिएक्शन हुआ, हमें 6 ग्राम रेसिड्यू मिला। उस रेसिड्यू में क्या क्या होगा? तो उस रेसिड्यू में कैल्शियम ऑक्साइड भी होगा और इंप्यूरिटी भी होगा, क्योंकि इंप्यूरिटी नॉन वोलेटाइल था, मींस इंप्यूरिटी यहीं पे होगा। और इसके कंबाइंड मास है 6 ग्राम। तो ये क्लियर हो गया कि जो 4 ग्राम मास लॉस हुआ, जो 4 ग्राम मास गया, वो कार्बन डाइऑक्साइड का मास था। अब इक्वेशन क्या बता रहा है? इक्वेशन बता रहा है कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट अगर डिकम्पोज करता है तो 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड एंड 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड देगा।
कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका मोलर मास आएगा कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 48, ये होगा 100। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 100 ग्राम 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा जिसका मोलर मास होगा 56, 40 प्लस 16, और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड जिसका मोलर मास है 44, 12 प्लस 32 44। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट अगर प्योर हो और कुछ नहीं हो, उसको अगर हीट करते हैं तो 56 ग्राम सॉलिड रेसिड्यू कैल्शियम ऑक्साइड का, 44 ग्राम लॉस हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये प्योर नहीं है। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड का मास मिल रहा है वो प्योर है, 4 ग्राम। और ये हमें मालूम है कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड 100 ग्राम प्योर कैल्शियम कार्बोनेट से मिलता है। तो हम यूनिटरी मेथड से ये सॉल्व कर सकते हैं कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड अगर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से मिलता है तो 4 ग्राम कितने से मिलेगा, एंड दैट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल बी मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन 10 ग्राम ऑफ दिस सैंपल। द सेम कैन नॉट बी डन यूजिंग कैल्शियम ऑक्साइड, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड का 56 ग्राम 100 ग्राम प्योर कैल्शियम कार्बोनेट से मिलता है, दैट इज ट्रू। लेकिन ये 6 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड का मास नहीं है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि 56 100 से तो 6 कितने से, क्योंकि 6 तो कैल्शियम ऑक्साइड का मास है ही नहीं, ये तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस इंप्योरिटी का मास है। लेकिन ये बात कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कह सकते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में वो 4 ग्राम प्योर CO2 का मास है। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। यानी कि CO2 के मास से हम डिटरमिन करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का मास, न कि कैल्शियम ऑक्साइड से, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड का प्योर में मास हमें है ही नहीं, दिया ही नहीं है। तो अप्लाई करते हैं सिंपल यूनिटरी मेथड। क्या कहेंगे कि सिंस 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम 100 ग्राम calcium carbonate, therefore 4 gram carbon dioxide from how much 100 upon 44 into 4, इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो ये 4 से 11 9 जा 99 1 0 109, so it is approximately 9.1 gram of कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो मास आया कैल्शियम कार्बोनेट का करस्पॉन्डिंग टू 4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये मास 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में प्रेजेंट रहा होगा सैंपल में। यानी कि ओरिजिनल 10 ग्राम सैंपल में 9.1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट था और बैलेंस 0.9 ग्राम इम्प्यूरिटी रहा होगा। तो परसेंटेज प्यूरिटी का मतलब हुआ कितना परसेंट कैल्शियम कार्बोनेट ओरिजिनल सैंपल में था। तो ये क्या हो जाएगा परसेंटेज प्यूरिटी 9.1 अपॉन 10 इंटू 100। 10 में 9.1 तो 100 में कितना, तो ये 91% और यही इसका आंसर होगा। समझ में आया आपको कि कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं इसे? एक बार और इसको रिपीट कर लेते हैं थोड़ा डिफरेंट एंगल से, तो ये और क्लियर हो जाएगा। सो लेट अस रिपीट दिस क्वेश्चन। रिपीट करेंगे with different wording, with slightly different information, but question more or less वही होगा, कोई
खास डिफरेंस नहीं होगा. सो लेट अस रिपीट इट. क्वेश्चन इज a 10 gram sample of calcium carbonate containing some volatile inert impurity. Now wording has changed. Volatile inert impurity आ गया, उस समय non volatile था. Inert impurity on heating decomposes completely to give 5 gram of solid residue. Determine mass percentage of calcium carbonate in the sample. Same question. The only difference is now the impurity is volatile. Means इस बार कार्बन डाइऑक्साइड के साथ impurity भी चला जाएगा. यानी कि वही डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगर अब लिखें, that calcium carbonate solid on decomposition gives calcium oxide plus CO2 और रिलेशन क्या है, 1 मोल जिसका मास 100 ग्राम, 1 मोल जिसका मास 56 ग्राम, 1 मोल जिसका मास 44 ग्राम. ये तो तब का सिचुएशन है जब प्योर कैल्शियम कार्बोनेट हो. अगर कैल्शियम कार्बोनेट 100% प्योर होगा, देन 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन डिकम्पोजिशन विल गिव 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सही है ना? लेकिन इंप्यूरिटी है और कंबाइंड कैल्शियम कार्बोनेट प्लस इंप्यूरिटी फिर से 10 ग्राम. लेकिन इस बार इंप्यूरिटी वोलाटाइल है और इसलिए इंप्यूरिटी भी गैस बनके CO2 के साथ निकल जाएगा और इसका कंबाइंड मास है 5 ग्राम. इसका मतलब ये हो गया कि जो रेसिड्यू 5 ग्राम है वो इस बार प्योर कैल्शियम ऑक्साइड है. तो कैलकुलेशन का डायरेक्शन इस बार चेंज हो जाएगा. अब हम ये नहीं कहेंगे कि 44 ग्राम CO2 फ्रॉम 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, सो 5 ग्राम CO2 फ्रॉम व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. नहीं, क्योंकि ये 5 ग्राम CO2 है ही नहीं. लेकिन ये 5 ग्राम प्योर कैल्शियम ऑक्साइड है, इसलिए इस बार हम कह सकते हैं कि 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड फ्रॉम 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, देयरफॉर 5 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड फ्रॉम व्हाट मास ऑफ calcium carbonate, and that calcium carbonate will be the mass of calcium carbonate in 10 gram of original sample. सिंपल है ना? रिपीट हो गया तो कर लेते हैं कैलकुलेशन. सो 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड फ्रॉम 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, therefore 5 gram calcium oxide from 100 upon 56 into 5. इसको अगर हम सॉल्व करें तो 500 by 56
अप्रॉक्सीमेटली 8.9 आ जाएगा। 500 डिवाइडेड बाय 56, 8.92, it is 8.92 gram calcium carbonate, and now this is the mass of calcium carbonate in this 10 gram sample. परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। So percentage of calcium carbonate will be 8.92 divided by 10 into 100. So it is 89.2%. That is the answer. तो सीख रहे हैं मोलर मास कैसे सॉल्व हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। अब जरा इन दोनों कॉन्सेप्ट को कंबाइन करके एक प्रॉब्लम और करते हैं इसी वैरायटी में, और फिर इसको हम क्लोज करते हैं। Let us do one more question on the same concept. This time we are going to take mixture. Question है, a 10 gram mixture of calcium carbonate and magnesium carbonate on strong heating decomposes completely giving 5.25 gram solid residue. Determine mass percentage of, किसी का निकाल लो, magnesium carbonate in the mixture. Calcium is 40, magnesium is 24. जब हम कहते हैं मिक्सचर, तो इसका मतलब होता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ जिसकी बात हो रही है वही है, कोई तीसरा नहीं है। यानी कि इस मिक्सचर में सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट है, कोई इंप्यूरिटी नहीं है। सैंपल होता तो ये दोनों के साथ इंप्यूरिटी की भी बात कर रहे होते। सो नाउ वी हैव ओनली कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। हीट किया, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हुआ इनटू कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड CO2, मैग्नीशियम कार्बोनेट इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड CO2। लिख लेते हैं पहले। कैल्शियम कार्बोनेट will decompose to give calcium oxide solid plus CO2. Magnesium carbonate will decompose to give magnesium oxide solid plus CO2. इधर टोटल कंबाइंड मास 10 ग्राम, इनके कंबाइंड मास 5.25 ग्राम। रिलेशन क्या है? इसका 1 मोल जिसका मास 100 ग्राम होगा,
1 mole. So 100 gram will give 56 gram, 1 mole का मास and 44 ग्राम. इसका मोलर मास देखो क्या हो जाएगा 24, मैग्नीशियम का 24 प्लस 12 36 अब प्लस 48 84 gram of this on heating will give 24 plus 16 40 gram and 44 gram. अगर हम सैंपल में मैग्नीशियम कार्बोनेट का x ग्राम ले लेते हैं तो इसका मास 10 माइनस x ग्राम हो जाएगा, टोटल 10 ग्राम. तो यूनिटरी मेथड से क्या हम सॉल्व कर सकते हैं कि 100 gives 56, so 10 minus x will give how much? Similarly 84 gives 40, so x gram will give how much? और x के टर्म में दोनों का मास निकाल के उसको ऐड करके 5.25 दिया हुआ है रेसिड्यू का मास, उससे इक्वेट कर लेंगे. यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड का मास इसमें कितना हो जाएगा 56 upon 100 into 10 minus x gram. 100 gives 56, so 1 will give 56 by 100, so 10 minus x will give 56 by 100 into 10 minus x. Similarly मैग्नीशियम ऑक्साइड का मास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 upon 84 इंटू एक्स, और इन दोनों का सम 5.25 है. Therefore 56 upon 100 into 10 minus x plus 40x upon 84 is 5.25. अब ये x में सिंपल इक्वेशन है और इससे हम x को सॉल्व कर सकते हैं. यहां से जब x को सॉल्व करते हैं तो x आ जाता है 4.2 ग्राम और ये मैग्नीशियम कार्बोनेट का मास है, देयरफॉर 42% मैग्नीशियम कार्बोनेट आ जाएगा. ये कैलकुलेशन आप कर लेंगे. अब मैं इसको एक थोड़ा डिफरेंट टेक्निक से बताता हूं. अगर रेसिड्यू का मास 5.25 है तो जो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड लॉस हुआ वो 4.75 ग्राम भी होगा. और हम यहां से कह सकते हैं कि 100 gives 44, so 10 minus x will give 44 upon 100 into 10 minus x. Similarly 84 gives 44, so x will give 44 upon 84 into x. यानी कि टोटल CO2 का मास को भी हम सॉल्व कर सकते हैं एंड इट विल बी 44 into 10 minus x divided by 100 plus 44x upon 84 is 4.75. इसका बेनिफिट क्या हुआ? देखो बेनिफिट ये हुआ कि इसका जब कैलकुलेशन करोगे तो आपको 84 100 का एलसीएम लोगे, 84 को 56 से 100 को 40 से मल्टीप्लाई करोगे, जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 44 का टर्म कॉमन हो जाएगा. आप इसको थोड़ा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. ये क्या हो जाएगा 10 minus x upon 100 plus x upon 44 will be equal to 4.75 upon 44. ये थोड़ा 44 कॉमन आ गया
और इसको सॉल्व करना भी रिलेटिवली इजी हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम ले लो, एलसीएम जब लोगे तो एलसीएम नीचे आ जाएगा 100 इंटू 44, इधर हो जाएगा 44 इंटू 10 440, 44 इंटू 10 440 माइनस 44x और प्लस हो जाएगा 100x, 44 कॉमन हो जाएगा तो 100x इज इक्वल टू 4.75/44, ये 44 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 100 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 475 माइनस 440 इज इक्वल टू 100 माइनस 44 56x, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 475 माइनस 440 35, 35/56 नहीं 475 माइनस 440 इज इक्वल टू, ये हो गया था 440 माइनस 44x प्लस 100x, ये कुछ कैलकुलेशन एरर आ रहा है, यहाँ से x की वैल्यू 4.2 नहीं आ रहा है, जरा एक बार चेक कर लें कहाँ मिस्टेक हुआ है। 44 इंटू 10 माइनस x अपॉन 100, 100 gives 44, so 10 minus x will give 10 minus x into 44 upon 100. This 44 upon 84 into x is equal to 4.75, 44 कॉमन ले लिया तो डिवाइडेड में चला गया, 4.75 अपॉन 44 इधर रह गया, 10 माइनस x अपॉन 100 प्लस x अपॉन 44, एलसीएम ले लिया 100 इंटू 44 तो 44 4 इंटू 10 440 माइनस 44x प्लस 100x, 44 कैंसिल, 475 आ तो यही रहा है, x इज इक्वल टू 35/56 आ रहा है। कहाँ मिस्टेक हो रहा है, ये 5/6 आ रहा है, सब तो ठीक ही ठाक कर रहे हैं बट स्टिल टोटल मास ऑफ CO2 4.75 ठीक ऐड किया ना, 549, अब चेक करना पड़ेगा इसमें कहीं पे कुछ या तो कैलकुलेशन एरर आ रहा है और नहीं तो फिर आंसर यही होगा। ठीक है, चेक करेंगे इसको। थीम समझ गए आप, करना क्या था। अब इसमें क्या नहीं करना है वो भी जरा सीख लेना चाहिए। इसमें एक मिस्टेक होता है जो यूजुअली स्टूडेंट कर देता है, देखो जरा वो नहीं करना है। सो लेट अस सी द मिस्टेक कॉमनली डन बाय स्टूडेंट इन दिस क्वेश्चन, जो हमें अवॉइड करना है। कैलकुलेशन इसका हम चेक कर लेंगे एक बार और नेक्स्ट टर्म में मैं आपको बता दूंगा कि इसमें कहाँ क्या था।
तो अभी अगर करेंगे तो टाइम लग जाएगा उसमें। इसमें कॉमन मिस्टेक क्या स्टूडेंट करता है कि लिख देता है रिएक्शन को इस तरह से, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस मैग्नीशियम कार्बोनेट गिविंग कैल्शियम ऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस 2CO2। ये रॉन्ग है। जैसे ही आप ये लिखते हो तो आप पहले ही ये एज्यूम कर लेते हो कि मिक्सचर में दोनों के 1-1 मोल है। ऐसा तो दिया नहीं है। अगर ऐसा दे ही रखा है तो फिर हमें निकालना क्या है? तब तो दोनों का मास दिया ही हुआ है, तो दोनों के मास में रिलेशन तो पता ही है। समझ में आया मैंने क्या कहा? कि अगर ऐसा लिखता है, कोई कहता है कि 100 ग्राम ऑफ दिस प्लस 84 ग्राम ऑफ दिस गिव्स 56 ग्राम ऑफ दिस, 40 ग्राम ऑफ दिस, 88 ग्राम ऑफ दिस, तो आपने पहले ही एज्यूम कर लिया कि इसके 100 ग्राम के साथ इसका 84 ग्राम है। तब तो आप सीधा ही कर लो कि 184 ग्राम में ये 84 है तो 10 में कितना होगा, तो गलत हो जाएगा ना। तब तो इस रिएक्शन का कोई मीनिंग ही नहीं रहा ना। ये दो अलग अलग कंपाउंड हैं, इनके अलग अलग रिएक्शन लिखने पड़ेंगे। ऐसे लिखते हैं तो हम ये पहले ही एज्यूम कर लेते हैं कि मिक्सचर में दोनों 1:1 के मोलर रेशियो में है, जो कि नहीं है। तो ये नहीं करना है, सेपरेट रिएक्शन लिखना है और जिस तरह से हमने सॉल्व किया है वैसे ही सॉल्व करना है। तो मोलर मास पे आगे बढ़ते हुए एक लास्ट आखिरी क्वेश्चन करते हैं, जो कि मोलर मास का क्लाइमेक्स होगा। मोलर मास का क्या होगा? क्लाइमेक्स। जैसे फिल्म में क्लाइमेक्स होता है ना, उसी तरह से मोलर मास टॉपिक का ये क्लाइमेक्स होगा। लेकिन फिल्म का क्लाइमेक्स तो यूजुअली प्लीजेंट होता है। लास्ट में विलेन मर जाता है, हीरोइन मिल जाती है और सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और खुश हो जाते हैं। इसमें ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये लास्ट प्रॉब्लम तकलीफ देगा थोड़ा सा, तो संभालना इसको। लेट अस सी क्या क्वेश्चन है। कह रहा है कि 5 ml, क्वेश्चन है, पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूं। 5 ml ऑफ एन ऑयली पॉलीमर इज पॉलीमर, इसकी डेंसिटी दी गई है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऑयली पॉलीमर इज spilled over water. Spilled over water. It formed a monomolecular layer and cover an area of 50 meter square. Cover an area of 50 meter square. If radius of spherical polymer molecule is 250 picometer, determine molar mass. Determine molar mass of
पॉलीमर। पहले आराम से क्वेश्चन को समझते हैं। रेनी सीजन में, बारिश के दिनों में सबने देखा होगा, अगर रोड पे कभी निकलो और कहीं पे पानी इकट्ठा हो रखा है और उसके ऊपर अगर डीजल या मोबिल किसी गाड़ी से गिर गया हो तो वो ऊपर फ्लोट करते रहता है। क्यों? क्योंकि ऑयल का डेंसिटी वाटर से कम होता है। कुछ वैसा ही सिचुएशन है। 5 ml एक ऑयल लिया, उसको पानी के ऊपर बिखरा दिया, छोड़ दिया। ऑयल ने पानी को कवर कर लिया। जो एरिया कवर किया वाटर का वो है 50 मीटर स्क्वायर, यानी कि 50 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ वाटर को ऑयल ने कवर कर लिया। ऊपर से एक थिन लेयर बना दिया, परत बना दिया ऑयल का पानी के ऊपर। अब स्टोरी ये है कि पॉलीमर मॉलिक्यूल का एक मोनोमॉलिक्यूलर लेयर बन गया पानी के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि सरफेस पे पॉलीमर के मॉलिक्यूल्स होंगे, तो मॉलिक्यूल्स एक सिंगल मॉलिक्यूल का लेयर बन गया, सिंगल मॉलिक्यूल का लेयर बन गया, यानी कि मॉलिक्यूल के ऊपर मॉलिक्यूल नहीं है। अब अगर मॉलिक्यूल का स्फेरिकल रेडियस दिया है तो बताओ मोलर मास क्या है। यह है सिचुएशन। कुछ ऐसे इमेजिन करो, बिल्कुल एक जनरल डे टू डे लाइफ से इसको रिलेट करके देखो। एक बाथ टब लिया, एक छोटा सा बच्चे के नहाने का बाथ टब ले लो और कुछ प्लास्टिक के बॉल ले लो, आइडेंटिकल प्लास्टिक के स्फेरिकल बॉल ले लो, खेलने वाला जो बॉल आता है, टीटी बॉल ले लो, टेबल टेनिस बॉल ले लो, ढेर सारा, और उस टेबल टेनिस बॉल को पानी में छोड़ दो। क्या करेगा? बॉल फ्लोट करेगा। कुछ वैसा ही सिचुएशन है। बॉल पॉलीमर मॉलिक्यूल है, पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है। बॉल के ऊपर बॉल नहीं है, सिंगल बॉल का एक लेयर बन गया पानी के सरफेस के ऊपर और पूरा सरफेस कवर हो गया। बॉल के ऊपर बॉल नहीं है, मॉलिक्यूल के ऊपर मॉलिक्यूल नहीं है, यानी कि सिंगल मॉलिक्यूल का एक लेयर बन गया। तो अब सिचुएशन है कि इस इंफॉर्मेशन से हम मोलर मास को कैसे निकालें। मॉलिक्यूल तो स्फेरिकल है, पानी पे जो फ्लोट करेगा तो मॉलिक्यूल का एक बॉटम टिप केवल टच करेगा पानी पे, लेकिन वो मॉलिक्यूल वाटर का कितना सरफेस एरिया कवर करेगा जरा इमेजिन करो। इमेजिन करो एक क्यूब इमेजिन करो, और अगर आपसे पूछा जाए कि इस क्यूब में जो लार्जेस्ट स्फेयर रख सकते हैं, इस क्यूब के अंदर जो लार्जेस्ट स्फेयर रख सकते हैं, उस स्फेयर का डायमीटर क्या होगा? तो क्यूब के साइड लेंथ के बराबर होगा। लार्जेस्ट स्फेयर जिस क्यूब में हम रख सकते हैं उसका डायमीटर इस क्यूब का साइड लेंथ होगा। तो इमेजिन करो वो स्फेयर मॉलिक्यूल है और क्यूब वर्चुअल है, क्यूब हमने जस्ट इमेजिन किया है। इस स्फेयर का भले ही एक बॉटम टिप टच करेगा वाटर सरफेस को, लेकिन दूसरा स्फेयर उसके बगल वाले क्यूब में होगा। कुछ इस तरह से, बताओ होगा कि नहीं? कुछ इस तरह से, यानी कि एक मॉलिक्यूल वाटर पे कितना सरफेस एरिया कवर करेगा जिसमें कोई दूसरा मॉलिक्यूल नहीं आ सकता? इस क्यूब के एक फेस के एरिया के बराबर। और एरिया क्या है? डायमीटर ऑफ द क्यूब विच इज, साइड क्या है? डायमीटर ऑफ द क्यूब विच इज 250 पिकोमीटर।
इससे हम निकाल सकते हैं कि 1 मॉलिक्यूल कितना एरिया कवर करेगा वाटर सरफेस पे। एरिया कवर्ड बाय 1 मॉलिक्यूल, क्या ये ए स्क्वायर होगा? ए है 250 पिकोमीटर, पिकोमीटर 10 का पावर -12। देखो यहीं के लिए वो सब सफिक्सेज आपको मैंने बताया था, 10 का पावर -12। सो 250 इंटू 10 का पावर -12 मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा 2.5 का स्क्वायर इंटू, यहां ले लिया डेसिमल तो 10 का पावर -10 का स्क्वायर, 10 का पावर -20 मीटर स्क्वायर, और 6.25 इंटू 10 का पावर -20 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया एक मॉलिक्यूल कवर करेगा। वाटर का टोटल एरिया कितना है? 50 मीटर स्क्वायर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा? टोटल एरिया डिवाइडेड बाय एरिया कवर्ड बाय 1 मॉलिक्यूल। भाई इतना एरिया 1 मॉलिक्यूल, तो 50 मीटर स्क्वायर एरिया, 50 अपॉन दिस। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा 50 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6.25 इंटू 10 का पावर -20 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा -20, ऊपर जाके हो जाएगा +20, और 50 अपॉन 6.25, 50 डिवाइडेड बाय 6.25, 8। सो इट इज 8 इंटू 10 का पावर 20 मॉलिक्यूल्स। ये आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इतने मॉलिक्यूल्स कहां से आए? 5 ml पॉलीमर से। और 5 ml पॉलीमर का डेंसिटी अगर दिया है तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास आ जाएगा। मास ऑफ पॉलीमर क्या हो जाएगा? मास ऑफ पॉलीमर हो जाएगा 5 इंटू 0.8, 4 ग्राम। So 4 gram is the mass of this much molecule. तो मोलर मास क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल। So मास ऑफ 1 मोल क्या हो जाएगा? इतने मॉलिक्यूल का मास 4 ग्राम, तो 1 मॉलिक्यूल का मास 4 अपॉन 8 इंटू 10 का पावर 20, तो 1 मोल का मास इंटू 6.022 इंटू 10 का पावर 23 ग्राम। इतने मॉलिक्यूल 4 ग्राम, तो 1 मॉलिक्यूल 4 अपॉन दिस, तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल 4 अपॉन दिस इंटू दिस। ये हो गया 4/2, 4/82। ये 2 से अप्रॉक्सीमेटली 3 ले सकते हैं, तो ये अप्रॉक्सीमेटली हो गया 3 इंटू 10 का पावर 3, नहीं 3 अपॉन 3 इंटू 10 का पावर 3। कैलकुलेशन सब सही चला? देख लें एक बार फिर से। डायमीटर 250 पिकोमीटर, तो 250 पिकोमीटर मीन्स 250 इंटू 10 का पावर -12, 250 मीन्स 2.5 इंटू 10 का पावर -10, तो -10 स्क्वायर -20, 6.25 इंटू 10 का पावर -20 मीटर स्क्वायर हो गया एरिया कवर्ड बाय 1 मॉलिक्यूल। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 50 divided by this, so 8 into 10 ka power +20, this much molecule 4 gram, so 1 molecule 4 upon this, so 1 mole of molecule, ठीक है।
बिल्कुल सही. सो इट इज दिस मच ग्राम पर मोल. तो ये सब था एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास की स्टोरी. अब इसी पे बेस्ड एक सिंपल सा टॉपिक और आता है, दैट इज इंपेरिकल फार्मूला एंड इट्स डिटर्मिनेशन. तो नेक्स्ट क्लास में हम इंपेरिकल फार्मूला करके एंड देन विल गो फॉर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. जरूरत है अब आपको इसी इंथु के साथ, इसी स्पिरिट के साथ इससे जुड़ने की. सो थैंक यू. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.